Now the screen is visible to everyone. Yes or no? Yes, sir. So in the last class I have discussed variables, all those things I have discussed. So I have discussed the print statement also. So see here, I am declaring one variable num1. I am declaring one variable num1. Right now I am writing one program. अभी हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना? So first I am declaring one variable num1 equal to 10, num2 equal to 20, num equal to num1 plus num2, num is equal to num1 plus num2, num is equal to num1 plus num2, and here everyone I have increased the font. And next one is print statement. What is the use of print statement? It will display the output in the window. Console window पे black screen आएगा, अभी हम practical करके दिखाएंगे आप लोग को. तो इस पे आएगा output print num, print num. So these are the 4 statements I am writing. And see here everyone, this one is the program. This one is one program. This one is one program, and I will save the file, this file as add or add.bas. File extension is bas, and this is the name of the file, right? So same this one I will run in the output. Means अभी हम लोग इसको प्रोग्राम करेंगे, ठीक है ना? QBasic एडिटर अभी ओपन करेंगे. So see here everyone, QBasic. Here, this one is the QBasic. Now everyone see this one, QBasic editor. ये हमारा QBasic है, ठीक है ना? And here press the enter. Click on here. It is asking press enter and then press escape. Right? Alt enter. So हमारा बड़ा screen हो जाएगा. Everyone tell me screen is visible or not? Yes, sir, it is visible. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now see here, I am writing the program here. This one is what? Just like a copy. आपका एक कॉपी होगा जिसमें आप प्रोग्राम लिखिएगा. कॉपी में ही लिखते हैं ना, तो ऐसे दिस इज लाइक अ कॉपी वेयर यू विल राइट एनी स्टेटमेंट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम राइटिंग num1 equal to 10, num2 equal to 20, num2 is equal to 20, right? And next one is num is equal to num1 plus num2, right? Here I am writing print space and next one is num, right? So see here, अभी हम लोग ये प्रोग्राम लिखे हैं, सारे लोग समझने का कोशिश कीजिए. स्टेप नंबर 1, num1 is equal to 10, num2 is equal to 20, num is equal to num plus this and print num. ये जो प्रोग्राम लिखे हैं ना, अभी इसको सेव कर रहे हैं. फाइल, click on file, save as. So here is the file name. Here you have to give the file name add and just click on OK. Automatically ये जो editor है ना, ये editor QBasic का ही editor है. So automatically it will take the file extension .bas, automatic ले लेगा, ठीक है ना? Click on OK. See here in the top, add.bas. bas is what? The file extension. add is what? The file name, right? Now one more thing, see here. ये हमारा फाइल में जो भी प्रोग्राम लिखे हैं, दिस प्रोग्राम इज इन हाई लेवल. ये हमारा हाई लेवल में है, ठीक है ना? सो ये हाई लेवल प्रोग्राम लिखे हैं, कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आएगा, कंप्यूटर को ये डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा. तो इसको फिर क्या करना होगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? यस, कंप्यूटर को समझने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब जो कन्वर्ट करेंगे वो चीज हमें कंप्यूटर को समझ में आएगा और वो कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, ठीक है ना? तो इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ आपको जो कन्वर्ट करना है. सी हियर एवरीवन, व्हाट इज द पॉइंट इज, हियर सी हियर, ये जो हम लोग हाई लेवल में प्रोग्राम लिखे हैं, इसको कन्वर्ट कौन करेगा? हाई लेवल से हमको कन्वर्ट करना होगा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में. हमें मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में 101 में कन्वर्ट करना होगा ना. 101. Yes, sir. ये सारा अभी बताए थे ना आप Yes, sir. लोग? Yes, sir. ये सब Yes, 101. sir.
ये सारा 0 0 Compiler will convert or interpreter. yes. So see here, this is one programming language key basic. So this program we are able to easily understand, but कंप्यूटर के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये समझना। तो इस चीजों को कन्वर्ट करेगा कौन? कंपाइलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है ना, इंटरप्रेटर। सो अब देखिए यहाँ पे या तो कंपाइलर कन्वर्ट करेगा, ये इंटरप्रेटर करेगा। इसको आपको ये नहीं हेडेक लेना है कि कौन कन्वर्ट करेगा, ये आइदर इट विल कन्वर्ट द कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है ना। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद ये जो होगा ना, ये एज ए इनपुट जाएगा कंप्यूटर को। हम लोग ये लिख रहे हैं add.bas, लेकिन ये अब इनपुट अंदर में जब हम रन बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो क्या होगा, ये चीज, ये प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब ये कंप्यूटर को जाएगा, कंप्यूटर ये चीज इस इजीली समझ जाता है, और उसके बाद हमें रिजल्ट आएगा। सो सी हियर एवरीवन, अब हमें फाइनल रिजल्ट के लिए करना क्या होगा, यहां पर स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इफ यू क्लिक हियर रन, रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे और स्टार्ट बटन यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे, तो बैकग्राउंड ये हमें क्या रहा, आपको आसानी के लिए ये चीज जैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन बैकग्राउंड में कंप्यूटर में क्या होगा, वो सारा जो हम लोग प्रोग्राम में लिखे है ना 3-4 स्टेप्स, सारा कन्वर्ट होगा 101 में, और उसके बाद रिजल्ट हमें स्क्रीन पे दिखेगा। सी हियर स्टार्ट, नाउ द रिजल्ट इज 30। एवरीवन इज एबल टू सी? No, sir, the result is not visible. Yes, sir. It is visible. Yes, sir. Visible, visible. So Now it is Visible. result is 30. So wait everyone, if I will run 4 times, the result is every time it is 30 coming. So those who are in the off means online, maybe ब्लैक स्क्रीन के कारण आपको दिखेगा नहीं, लेकिन रिजल्ट आ रहा है। सारे ऑफलाइन जो है उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। सो रिजल्ट इज कमिंग। अभी हम लोग छोटा छोटा लिख रहे हैं ना, बड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे तो पूरा आपको दिखेगा, ठीक है। सो रिजल्ट इज कमिंग नाउ। सो सी हियर, इफ आई विल रन दिस प्रोग्राम, सो एवरी टाइम दिस 30 इज कमिंग। जितने बार रन कर रहे हैं ना, आप देखिए 5th टाइम ऑल्सो 30 इज कमिंग, ठीक है ना। Yes, sir. ये जो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन में जो आउटपुट आ रहा है रिजल्ट, ये किसके कारण आ रहा है? प्रिंट स्टेटमेंट के कारण आ रहा है। जो कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट का काम क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, व्हाई वी आर यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट? एवरीवन कंसंट्रेट हियर। प्रिंट स्टेटमेंट का काम क्या है? So it is used to display. It is used to display the value of print statement is used to print statement it is used to display the value. It is used to display the value of any variable. It is used to display the value of any variable or constant or what expression on the console. ये जो ब्लैक स्क्रीन, जो आउटपुट स्क्रीन जो आता है ना, उसको कंसोल स्क्रीन बोलते हैं। ऑन द कंसोल, राइट, आउटपुट विंडो भी बोल सकते हैं। ऑन द कंसोल और आउटपुट विंडो। कंसोल जो ब्लैक स्क्रीन का आ रहा है ना, रन बटन पे क्लिक करने पे जो आ रहा है ब्लैक स्क्रीन एक नया, तो उसको कंसोल स्क्रीन बोलते हैं। सो प्रिंट स्टेटमेंट का काम क्या है? इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल और कांस्टेंट और एक्सप्रेशन ऑन द कंसोल आउटपुट विंडो। नाउ सी हियर अगेन एवरीवन, कंसंट्रेट हियर। सो दिस प्रोग्राम, सो सी हियर एवरीवन। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, लाइन नंबर 5 पे अभी हम लिख रहे हैं क्या चीज? प्रिंट से क्या होगा? कंसोल पे जाएगा। अब हम एक वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। वेलकम टू CMIS, ये क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब इसको रन कर रहे हैं। सी हियर एवरीवन, वेलकम टू CMIS लिखा हुआ आ रहा है ना। नाउ सी, Yes, sir.
अब ये जो हमारा है ना लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, num1 इक्वल टू 10। बैकग्राउंड में कल हम बताए थे ना आप लोगों को कि एक हमारा मेमोरी में वेरिएबल पॉइंट होगा जिसमें वैल्यू 10 जाएगा, कल बता चुके हैं। यस। सेकेंड वन ही num2 20। थर्ड लाइन ही num इज इक्वल टू num1 प्लस num2, राइट। सो num वेरिएबल में 30 हो गया, प्रिंट num, तो 30 विल बी प्रिंटेड इन द स्क्रीन एंड नेक्स्ट वेलकम टू CMIS विल बी प्रिंटेड। तो आंसर क्या आना चाहिए, आउटपुट विंडो में आंसर आपका 30 आएगा और नेक्स्ट लाइन पे वेलकम टू CMIS आएगा, ठीक है ना। तो सी यार, ये तो आउटपुट विंडो में क्या हो रहा है, कुछ और ही आउटपुट आ रहा है। कंसंट्रेट हियर। सो आउटपुट विंडो में अगर आप देखिएगा आउटपुट कुछ अलग आ रहा है, 30 30 30 30 30 वेलकम टू CMIS, अगेन 30 अगेन वेलकम टू CMIS। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये इसलिए हो रहा है कि प्रीवियस टाइम जो मैंने इस प्रोग्राम को रन किए थे ना उसका भी आउटपुट विंडो पे दिखा रहा है, ब्लैक स्क्रीन कंसोल पे प्रीवियस टाइम जो मैंने रन किया था उसका भी आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। तो उस चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, एक स्टेटमेंट है CLS स्टेटमेंट। CLS स्टेटमेंट मींस क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द प्रीवियस आउटपुट ऑन द कंसोल स्क्रीन। अब देखिए see here everyone, if I will run this program again, so first line is what, CLS का काम क्या है, this statement will clear the previous output on the screen। कहां पे, कंसोल स्क्रीन पे हमारा ब्लैक स्क्रीन जो आएगा उसको पहले क्लियर कर देगा, अगर पहले का कोई आउटपुट पड़ा हुआ है रिजल्ट तो उसको क्लियर कर देगा। उसके बाद हमारा num1 है, num1 में 10 जाएगा, सेकंड थर्ड लाइन num2 में 20, num में क्या होगा num1 प्लस num2 मींस 30, प्रिंट num, तो num का वैल्यू प्रिंट होगा कहां पे, कंसोल स्क्रीन में 30। उसके बाद क्या, प्रिंट वेलकम टू CMIS, तो आउटपुट क्या आएगा 30 और CMIS। सी अगर अब इसको हम लोग 10 टाइम्स भी रन करेंगे ना तो सेम यही आउटपुट आएगा, प्रीवियस आउटपुट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सारे लोग को? Yes, sir. प्रीवियस Yes, आउटपुट, sir. अब पहले का जो आउटपुट था वो नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, CLS स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ CLS स्टेटमेंट एवरीवन? यस, व्हाट Sir, it is used to clear the previous output. सी हियर, Clear सो the screen. what is the purpose of CLS statement? CLS statement is used to, CLS statement is used to, what is the purpose of, what is the purpose of CLS statement? CLS statement किस लिए यूज करते हैं, this it is used to clear the previous output on the console. Console means black screen आ रहा है, output window on the console screen, console window or screen. Any doubt to anyone up to here? No, sir. No, doubt. Yes, sir. Now, so first one is print statement I have discussed today. Next one is CLS statement. After that, ream statement. After that, next one is ream statement. What is the purpose of ream statement? Concentrate here, everyone. First, practically we will discuss first everything. So here, what I am doing? Here I am परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ टू नंबर, दो नंबर का हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब किसी को भी अगर ये दे दिया जाए, सपोज आपके हिंदी टीचर को लाके ये दे दिया जाए तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज अगर हम लोग एक कमेंट दे दे, हर लाइन के बारे में लिख दे कि व्हाट दिस लाइन इज डूइंग। सो सपोज हियर इफ आई विल राइट लाइक अ जनरल इंग्लिश, अगर हम लोग कुछ इस तरह से लिख दे, ream, here I am writing what, addition of two numbers. Now see here, any effect will be there in the output में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों कि ये जो रीम स्टेटमेंट किस लिए लिखा जाता है, रीम स्टेटमेंट अपने
अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए लिखा जाता है। सपोज ये प्रोग्राम अभी ये क्या 4-5 लाइंस का है, बट इन रियलिटी द प्रोग्राम विल बी 10 लाख लाइन, 10 लाख 20 लाख लाइंस से प्रोग्राम बनता है, ठीक है ना। ये तो अभी हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का। तो इसलिए रीइंग स्टेटमेंट का काम क्या रहता है, हमें अपना अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाना है, मींस एवरी स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो लिखना है प्रोग्राम में। तो हम लोग उसके लिए रीइंग स्टेटमेंट लिखते हैं। सो सी अब इसको अच्छा से समझने के लिए और समझिए, फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, num1 is equal to num2. So here I will write ream 10 is assigned to what, num1 variable. 10 is assigned to num1 variable. So see here everyone, num1 is equal to 10. In this way, before this statement num1 के ऊपर मैंने लिख दिया ream 10 is assigned to num1 variable, right? See here everyone, statement number first one is, so everyone one more point important is ream 20 is assigned num2 variable. 20 is assigned to num2 variable. Yes, what is going in the background? पीछे क्या हो रहा है? Here everyone, the point here is first statement is what, CLS statement. Second statement is ream statement. Ream statement आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो हम लोग लाइन प्रोग्राम जो लिखे हैं, एवरी स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, कन्वर्ट होता है 101 में। लेकिन जब हमें जैसे ही अगर हमारे प्रोग्राम में कहीं भी रीम स्टेटमेंट है, किसी भी लाइन पे अगर रीम स्टेटमेंट है, वो रीम स्टेटमेंट कन्वर्ट नहीं होगा। रीम स्टेटमेंट लिखने से हमें प्रोग्राम का आउटपुट में कोई फर्क पड़ रहा है? जो पहले आ रहा था वही अभी भी आ रहा है ना। वाई, बिकॉज रीम स्टेटमेंट हम लोग अपने लिए लिखते हैं, प्रोग्राम को हम लोग नहीं दे रहे हैं। सिर्फ हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि ये जैसे num1 इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है किस लिए लिखे हैं, तो हम बगल में लिख रहे हैं कि ये इस स्टेटमेंट का काम क्या है। सो num1 जैसे लिखे num1 इक्वल टू 10, सो मैंने ऊपर में एक लिखा है स्टेटमेंट, ड्रीम स्टेटमेंट, वो बता रहा है कि नंबर में वैल्यू 10 स्टोर है। ऐसे ही मैंने लिखा है सेकेंड लाइन, रीम 20 इज असाइंड टू वेरिएबल। सो इसका मतलब हुआ कि नीचे जो लाइन है उसमें मैंने 20 स्टोर किया है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग नीचे और भी रीम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। रीम स्टेटमेंट विल नॉट पार्टिसिपेट इन कंपाइलेशन, मींस कन्वर्ट जब होगा ना सोर्स कोड, ये क्या होता है हाई लेवल प्रोग्राम में इसको सोर्स कोड बोलते हैं। तो सोर्स कोड जब कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट कोड में, मींस कंपाइलर जब कन्वर्ट करेगा, इस लाइन को कंपाइलर इग्नोर कर देगा। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है? इस लाइन को कंपाइलर इग्नोर कर देगा, मींस इस लाइन को वो कन्वर्ट नहीं करेगा। कन्वर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, आउटपुट में हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एनी डाउट टू एनीवन? यस, एनीवन इन द ऑनलाइन क्लास, मींस ऑनलाइन जो है, किसी को कुछ डाउट रीम स्टेटमेंट में? No, sir. No doubt. Ream statement is just like a comment. No sir, no sir. It is just like a comment. For every statement you are writing one comment. आप अगर अपने प्रोग्राम को अगर इस ये क्या होगा ना, अगर किसी भी नॉर्मल पर्सन को भी अगर दे दिया जाए ना, तो वो पढ़ के समझ जाएगा, ठीक है ना। ये पढ़ के ऊपर वाले स्टेटमेंट को पढ़ के समझ जाएगा क्या हो रहा है, हर लाइन बाय लाइन का क्या मतलब है, ठीक है ना। सो रीम स्टेटमेंट हम लोग पूरे लाइन सारे स्टेटमेंट के लिए नहीं लिखते हैं, ओवरऑल एक प्रोग्राम के लिए लिखते हैं, राइट। सो सी हियर जस्ट हम लोग रीम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, रीम एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या होगा, ये ओवरऑल इसका काम क्या है, ये प्रोग्राम किस पर्पस से बना है हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। सो रीम स्टेटमेंट यही है हमारा रीम स्टेटमेंट। सी हियर अभी मैंने जो पहले लिखा था, और आप अगर इसको रन करें, सी हियर आउट, रन दिस नाउ, रीम स्टार्ट, वेलकम 30 and welcome to CMIS. तो रीम स्टेटमेंट
ये किस लिए लिखा है? रीम स्टेटमेंट विल नॉट बी कन्वर्टेड बाय द कंपाइलर इन द ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड में रीम जो स्टेटमेंट होता है वो भाग नहीं लेगा, ठीक है ना। इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलर इट विल सिंपली इग्नोर। कंपाइलर क्या करता है? लाइन बाय लाइन, टॉप टू बॉटम, एक एक लाइन को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 101 में कन्वर्ट करता है, बट रीम स्टेटमेंट को वो नहीं कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा? यस एवरीवन, एनी डाउट इन रीम स्टेटमेंट? No, sir, no doubt. So if this source code is converted by the compiler or interpreter, either it will be converted by compiler or interpreter, अगर compiler convert करेगा या interpreter करेगा, both case में ये it will not be, it will simply ignore, उसको ignore कर देगा, ठीक है ना। So next statement is after that, see here, रीम statement is over input statement. Now everyone see here, हमारा ये प्रोग्राम जो है ना स्टैटिक प्रोग्राम है। स्टैटिक प्रोग्राम का मतलब होता है, जस्ट वेट एवरीवन फॉर अ मिनट। I have changed now, see here everyone. So this program, concentrate here, CLS num1 is equal to 10, num2 is equal to 20, num is equal to num. So ये जो प्रोग्राम लिखा हो ना, if I will run this program 10 times also, see here, start, run this, click on run, start. So output is 30 and this. Every time, if I will remove this line also, remove this. So every time if you run, every time the value is 30 only, print 30. If you run 10 times also, the output will be 30. So this type of program is called as static program. अगर 10 बार भी रन करे same program, it will give the same output, no change. Now see here, I want to make it, अब ये मुझे क्या है, every time second statement क्या है, num1 is equal to 10, but I want the num1 to be given by the user. User हम लोग user है, स्क्रीन आएगा ना ब्लैक स्क्रीन, तो ब्लैक स्क्रीन में num1 का वैल्यू एंटर करने के लिए हमसे वो पूछेगा, स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन, समझ रहे? जैसे हम लोग क्या होता है, पॉकेट स्टडी या माई क्लास कैंपस खोलते हैं तो यूजर नेम हमसे वो पूछता है ना, इट इज आस्किंग टू द यूजर टू गिव द यूजर नेम देयर। समझ में आ रहा है स्मृति प्रिया? सो इन दिस वे आल्सो आई वांट दिस num1 एंड num2, ये num1 और num2 का जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं ना, अब मैं इसको फिक्स नहीं करना चाहिए। ये क्या हुआ, 10 और 20 फिक्स हो गया, स्टैटिक यही होगा, इसी को कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट, 10 जो है क्या है, कांस्टेंट है, ये फिक्स हो गया है। स्टार्टिंग में बोले थे ना कि कांस्टेंट हम क्या होता है अभी नहीं बता पाएंगे, आप लोग नहीं समझ पाइएगा। मैथ में कांस्टेंट जो होता है वो थोड़ा सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो 10 है पूरे प्रोग्राम में अगर 10 टाइम्स आई विल रन, सेम ये नंबर में 10 ही जाएगा, सेम कांस्टेंट जाएगा, ये फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? अभी जैसे टाइम क्या हो रहा है, सपोज द टाइम इज 2 PM, आफ्टर 1 मिनट द टाइम विल चेंज 2.1, तो ये क्या, इसको बोलते हैं चेंज हो रहा है, डायनेमिक है। इसी तरह से ये वैल्यू वेरिएबल में भी हम लोग डायनेमिक करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो ये स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग लिखेंगे, एक मैसेज देंगे इनपुट, अभी सेम प्रोग्राम को हम चेंज कर रहे हैं, इसको डायनेमिक बना रहे हैं। सी हियर एवरीवन, सो फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम राइटिंग, concentrate here, print enter first number, right? So this one is what, print string constant हमारा, print में प्रिंट करने की CLS है, फर्स्ट स्टेटमेंट CLS, तो आउटपुट विंडो जो आएगा क्लियर कर देगा पहले का आउटपुट। सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट, प्रिंट, सो इट विल प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, मैसेज हमारा आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, राइट? नाउ सी हियर, after that here I will write input. Input is a statement. What is the purpose of input? See here, input is a statement. अब मुझे जब ब्लैक स्क्रीन आएगा उस पर मुझे एक इनपुट चाहिए, कुछ हम यूजर से एंटर कराना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यूजर से एंटर क्या करा सकते हैं, या तो स्ट्रिंग कांस्टेंट या न्यूमेरिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा, या तो स्ट्रिंग कांस्टेंट या न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट को स्टोर कहाँ करते हैं, आइदर स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक वेरिएबल। तो ये इनपुट स्टेटमेंट के जस्ट बगल में स्पेस देके लिखेंगे आइदर स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक वेरिएबल। जैसा हमें इनपुट चाहिए यूजर से वैसा वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। सपोज num1 वेरिएबल हम डिक्लेयर करें, इट इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल,
Now see here, run this. If you run, so first line is what? CLS, clear the screen, previous screen. Second line is what? Enter. Print statement में लिखा हुआ था ना, print enter the first number. So देखिए ऊपर में मैसेज आ रहा है enter first number. After that, the third line is what? Input num1. So input num1 जैसे लिखा हुआ ना, एक कर्सर आ रहा है, यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर रहा है कर्सर. All the online students, जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. आपके स्क्रीन पे इनपुट स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इट विल आस्किंग फॉर गिव द इनपुट. आपसे पूछ रहा है, जैसे पॉकेट स्टडी में एक आता है ना, एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर पासवर्ड. सो हियर इट इज आस्किंग एंटर योर नेम, व्हाट? एंटर द फर्स्ट नंबर. तो आपको एक नंबर इनपुट करना है. सो जो भी हम नंबर सपोज 22 इनपुट किए, ये 22 कहाँ चला गया? ये 22 num1 वेरिएबल में स्टोर हो गया. num1 वेरिएबल में स्टोर हो गया. समझ में आ रहा? सी हियर एवरीवन. सो दिस वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द num1 वेरिएबल. अब ये वैल्यू जो हमारा num1 वेरिएबल में स्टोर हो चुका है. सो ये वैल्यू हमारा num1 वेरिएबल में जो भी इनपुट कर रहा है ना, वो num1 वेरिएबल में स्टोर हो जा रहा है. अभी देखिए जो फोर्थ लाइन, अगर हम नीचे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट करते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे डबल कोट, द वैल्यू गिवन बाय द यूजर इक्वल टू डबल कोट num1. सी हियर, अगर रन करते हैं इसको, प्रोग्राम को, सी हियर एंटर फर्स्ट नंबर, मैसेज आया क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट के कारण आ रहा है ये, ठीक है ना. 44, मैंने 44 एंटर किया. ये 44 कहाँ स्टोर हो जाएगा? num1 वेरिएबल में. इनपुट जो स्टेटमेंट लिखे थे उसके बगल में नंबर लिखे थे ना, उस नंबर में ये 44 जो हम यहाँ पे एंटर करें वो जा रहा है, ठीक है ना. बैकग्राउंड में पीछे ऐसे ही हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा. अब जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन क्या है? प्रिंट स्टेटमेंट है. प्रिंट द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर, और बगल में सेमी कॉलन दिए थे और num1 लिखे थे ना. तो num1 में 44 मैंने एंटर किया था. तो सी हियर द वैल्यू गिवन बाय द यूजर इज इक्वल टू 44. कमिंग और नॉट? समझ में आ रहा? सेम प्रोग्राम. सो आई एम चेंजिंग दिस वन इन दिस वे. नेक्स्ट स्टेटमेंट आई एम राइटिंग प्रिंट. अगर नहीं भी जिसको समझ में आ रहा होगा तो अगले क्लास में ही बताएंगे. एंटर सेकंड नंबर, तो क्या होगा? और इनपुट यहाँ पे कर रहे हैं इनपुट num2, ठीक है ना. और यहाँ पे लिख रहे हैं num इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है. और प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं num. नाउ रन दिस, क्लिक ऑन स्टार्ट. सो एंटर फर्स्ट नंबर. सो फर्स्ट नंबर इज 55, राइट. enter second number, message it is giving. Second number is suppose 11. So 55 plus 11, I have written in the one statement num is equal to num1 plus num2. 55 will be stored in num1, 11 will be stored in num2. So num1 plus num2 is 55 plus 11, 66. So output will be 66 will be printed. See here, yes or no? If I will run this program, every time the output will be different. First number 11, second number 22, output 33. But what about the previous we are fixing the value हम fix कर दे रहे थे प्रोग्राम में, इसलिए क्या हो रहा था? Every time the output is same going in the brain. So the class is over everyone. Now you can go. Yes, class is over everyone.